Good morning, dear students. Welcome to our English class. Do you remember what we learned lastly? We started with Unit 7 of our English textbook, and the name of the chapter which we started was A Fair Play, right? We read out the first part. I explained you what exactly happened in the first part of the story. Still, we have second and third part to go, students. So let us revise what we learnt lastly. We learnt that Algu Chaudhary and Jumman Sheikh were the best friends ever, and they were so best friends that they used to take care of their families if any one of them is absent in the village. Okay, but Jumman was quite weird, as there was an aunt, old lady, who had transferred all her property to Jumman in order to being taken care by Juman, right? But what did Juman do and his wife do? They started insulting the old lady. They started treating very badly to her, and they were like, they didn't wanted the old lady to live in their home. The old lady decided that now it's enough, time is up, and she must not just tolerate the insults by the wife of Juman and the Juman himself, right? So she went to the villagers and started to talk about the condition, and everyone gave some or the other advice to her. Later, she also went to Algu Chaudhary, and then Algu was told to come and say the truth. Now, what is Algu going to do? Is he going to go against his best friend? बेस्ट फ्रेंड के खिलाफ जाने वाला है, वो क्या करने वाला है? दैट विल रीड इन पार्ट 2. Okay, so we'll start with part 2. The fifth paragraph here goes as: the panchayat was held the same evening under an old banyan tree. Juman stood up and said, "The voice of the Panch is the voice of the god." What happened? Panchayat was held and everyone in the village was called, and Juman stood up and said कि जो भी पंच जो भी तय करेंगे, that will be the voice of God and I will accept it. Okay. Let my aunt nominate the head punch. I will abide by her decision. Okay. तो जुम्मन ने ऐसा बोला कि मेरी जो आंटी है, जिन्होंने ये पंचायत बुलाई है, जिनको तकलीफ है, जो कंप्लेन करना चाहती है, लेट हर चूज द हेड ऑफ द पंचायत. वो जो इसको भी हेड मानेगी ना, मैं उसकी हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करूँगा. ओके, so that was the thing said by Juman. Okay, on next page, on page number 87, you have the sixth paragraph. I'm reading it out there. Open your books and look at it. The punch knows neither friend nor enemy. What do you say to Algu Chaudhary? The old lady announced. So the old lady said that जो पंच बनता है, जो पंचायत में हेड बनता है, उसको फ्रेंड्स और एनिमिटी ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए. क्या बोलते हो इस बारे में अलगू? और फिर बोलती है कि मेरा जो हेड पंच है वो है अलगू चौधरी. तो अलगू चौधरी इज चूजन एज द हेड पंच ऑफ द पंचायत इन द विलेज. ओके, तो अब बेचारा अलगू क्या करेगा? अब तो उसको पंच बना दिया. नाउ ही हैज़ टू से समथिंग. फाइन, रिप्लाइड जुम्मन, हाइडिंग हिज जॉय ओवर हिज अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक. तो जो जुम्मन था, उसको ऐसा लगा कि वाह, बोलो आंटी ने किसको चुना? मेरे बेस्ट फ्रेंड को. वो तो मेरा ही साथ देगा ना, मेरे अगेंस्ट थोड़ी जाएगा. तो अपनी खुशी छुपाते हुए उसने बोला, एज यू विश, जो आपने ठीक समझा वो आपने किया, सही है, मुझे एक्सेप्टेड है, ऐसा करके दिखाने लग गया. ओके. चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुमन, सेड अलगू. तो अलगू बेचारा टेंशन में आ गया. उसने बोला, चाची आपको तो पता है मैं और जुमन कितने अच्छे फ्रेंड्स हैं, फिर आपने मुझे क्यों हेड पंच चुना? आई नो दैट, रिप्लाइड द आंट, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कॉन्साइंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप. फिर जो आंटी होती है वो बोलती कि तुम अपनी आत्मा की बात ज़रूर सुनोगे, उसकी आवाज़ को दबाओगे नहीं, जो सच है वो तुम ज़रूर बोलोगे, इसीलिए मैंने तुम्हें हेड पंच चुना है. God lives in the heart of the punch and his voice is the voice of God, and the old lady explained her case. ठीक है, तो ऐसा सब बोल के अलगू को हेड पंच चुन के उसने अपनी बातें कहना शुरू किया कि जो पंच बनते हैं उनके हार्ट में गॉड लिव करते हैं और उनकी वॉइस भगवान की वॉइस होती है. वो जो भी डिसीजन लेते हैं सच्चा डिसीजन लेते हैं. तो दैट ऑल थिंग्स वर सेड बाय द आंट एंड देन शी स्टार्टेड टू एक्सप्लेन हर केस.
Juman said, Algu, you and I are old friends. Your aunt is as dear to me as you. Now I am a punch, and you and your aunt are equal before me. What have you to say in your defense? ठीक है, तो यहाँ पे अलगू ने बोला जुम्मान को, देखो हम लोग ओल्ड फ्रेंड्स है, सही बात है, लेकिन तुम्हारी जो आंटी है वो भी मेरे को उतनी ही प्यारी है जितनी तुम्हें है। जितने जितने तुम मुझे हो उतनी ही प्यारी तुम्हारी आंट भी मुझे है। और मैं एक पंच बन गया हूँ अभी, हेड हूँ, और तुम और दोनों आंट दोनों मेरे लिए इक्वल है, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे कोई फ्रेंड्स और ऐसा कुछ नहीं है। बोलो अब तुम क्या बोलना चाहते हो? आंटी ने तो अपनी बात बता दी, अब तुम अपनी बात बताओ, ऐसा बोल के अलगू ने जुम्मान को एक्सप्लेन किया। ठीक है। 3 years ago, began Juman, my aunt transferred her property to me. I promised to support her as long as she lived. I have done all I could. There have been a couple of quarrels between my wife and her, but I can't stop it. Now my aunt is claiming a monthly allowance from me. This is not possible. That's all I have to say. वॉट डिड जुम्मन एक्सप्लेन कि भाई 3 साल हो गए, आंटी ने सारी प्रॉपर्टी मेरे को दे दी थी ताकि मैं उनका ध्यान रख सकूं, और मैंने भी उनको सपोर्ट करने का प्रॉमिस किया था, लेकिन फिर क्या हुआ, धीरे धीरे घर में तो क्वारल्स हो गई। अब उन क्वारल्स को मैं रोक नहीं सकता था। अब क्वारल्स तो हो गई, अब फिर आंटी को क्या पता बुरा लग गया है क्या, वो बोल रही है कि महीने का पैसा मुझे दो ताकि मैं अपने हिसाब से अपना खाना पीना कर सकूँ। वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। अब बस इतना ही मुझे कहना है, ऐसा जुम्मान ने कहा। ओके। Jumman was cross examined by Algu and others. Then Algu announced, we have gone into the matter carefully. In our opinion, Jumman must pay his aunt a monthly allowance or else the property goes back to her. ठीक है, तो फिर सबने ऐसे डिस्कस किया कि ये सच बोल रहा है ना, ये इसने जो भी कहा वो सच है नहीं है, वो सब डिस्कस हो गया। और उसके बाद में फिर अनाउंस किया जुम्मन ने कि जो आंटी है वो बेचारी सही है, उसको अगर आप लोग जो उसको चाहिए वो नहीं दे सकते हो तो जो उसकी प्रॉपर्टी उसको वापस कर दो। ओके, तो ऐसा डिसाइड हो गया। बराबर। अब ये तो चीज़ गलत हो गई, मतलब सही चीज़ है लेकिन जुम्मन के लिए गलत हो गई ना, कि मैं अलगू मेरा फ्रेंड है और सपोर्ट मेरी आंटी को कर रहा है, ऐसा। So then what happened? In the 8th paragraph, you see, now the two friends were seldom seen together. The bond of friendship between them was broken. In fact, Juman was Algu's enemy and wanted his revenge. तो ये सब होने की वजह से जो फ्रेंडशिप थी वो टूट गई, बराबर। और अलगू और जुम्मन अब एनिमीज हो गए, मतलब जुम्मन अलगू का एनिमी हो गया। अलगू को तो ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि उसने जो किया वो सही था, लेकिन जुम्मन के खिलाफ था तो जुम्मन को बुरा लगा और वो चाहता था कि मैं अलगू से रिवेंज लूँ। Then we'll start with part 3. Okay. Juman wanted to take revenge of Algu, what he did in the Panchat. And then what happened? Days passed, and as ill luck would have it, Algu Chaudhary found himself in a tight spot. One of his fine pair of bullocks died, and he sold the other to Shamji Sahu, a cart driver of the village. The understanding was that Sahu would pay the price of the bullock in month's time. So it happened that the bullock died within a month. Okay, तो अब क्या हुआ ना, अलगू की हालत ख़राब हुई, उसके बुरे दिन चालू हो गए। अलगू बहुत ही मतलब टाइट स्पॉट पे था, मतलब उसके पैसे की बहुत परेशानी हो गई। उसका बुलक का पैर था, मतलब 2 बुलक्स थे उसके, उसमें से एक मर गया, तो अब बेचारे एक का क्या करे, तो उसने वो भी बेच दिया। साहू नाम का कोई कार ड्राइवर था विलेज में, उसको बेच दिया। और अंडरस्टैंडिंग ये हुई थी कि महीने भर बाद तक वो पैसे दे देगा, मतलब बुलक उसने ले लिया लेकिन पैसे तुरंत नहीं दिए, तो दे देगा बोल के छोड़ दिया। तो इसने भी जाने दिया चलो ठीक है 1 महीने बाद पैसे तो आएंगे, लेकिन वो महीने के अंदर ही जो बुलक था वो भी मर गया, मतलब उसके जो दोनों बुलक थे मर गए। मतलब अलगू ने तो बुलक बेच दिया, फिर बुलक मर गया ना, तो उसमें अलगू की तो कोई वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। फिर सेवरल मंथ्स आफ्टर द बुलक डेथ, Algu reminded Sahu of the money he hadn't yet paid. Sahu got very annoyed. I can't pay you a penny for the wretched beast you sold me. He brought us nothing but ruin. I have a bullock. Use it for a month and then return it to me. No money for the dead bullock, he said angrily. तो अब अलगू जब पैसे मांगने गया साहू के पास, तो साहू ने क्या बोला
किस चीज़ के पैसे दूँ? हाँ, वो अनलकी जानवर जो तूने मुझे बेचा, अनफॉर्चुनेट मतलब वृक्षेड मतलब कि किस्मत फूटी हुई, बराबर। तो ऐसा जो जानवर तूने मुझे बेचा उसके लिए मैं तुझे पैसे दूँ? ऐसे करके वो बहुत ही गुस्सा हो गया और बोलने लगा कि कुछ नहीं मिलेगा, उसकी वजह से मुझे कुछ नहीं मिला तो मैं कैसे पैसे दे दूँ तुझे, बराबर। और मेरे पास एक बुलक है, उसको ले जाओ, 1 मंथ तक यूज़ करो और उसके बाद में मुझे वापस दे दो। मनी वनी कुछ मिलने वाला नहीं है, वो भी उस जानवर के लिए जो मर गया। एकदम गुस्सा होके साहू ऐसा बोलता है। अब इसमें अलगू की क्या गलती थी? भुलक का ध्यान नहीं रखा होगा महीने भर तो वो मर गया होगा। ठीक है, पैसे तो देने चाहिए ना। अलगू decided to refer the case to the Panchayat for the second time in a few months. Preparations for holding the Panchayat was made and both the parties started meeting people seeking their support. ठीक है, तो फिर अलगू ने डिसाइड किया कि वो पंचायत से हेल्प मांगेगा और जाएगा और सबको बताएगा कि ये जो साहू है वो कैसा कर रहा है मेरे साथ। ठीक है, देन व्हाट हैपेंड? The panchayat was held under the old banyan tree. Algu stood up and said, "The voice of the Panch is the voice of God. Let Sahu nominate the head of Panch. I will abide by his decision." तो फिर उसने बोला साहू जिसको भी पंच का हेड चुनेगा मैं उसको हेड मानूंगा और वो जो भी डिसीजन लेंगे मैं उसको मानूंगा। साहू saw his chance and proposed the name of Juman. Algu's heart sank and he turned pale, but what he could do? तो फिर उसने क्या किया, जुम्मन को खड़ा किया। पता है कि भाई इन दोनों की दोस्ती टूट गई है, ऐसा है वैसा है, सारी कहानी सबको पता है। तो साहू ने फिर तुरंत ही चांस का फ़ायदा उठा लिया और जुम्मन को बोला कि यू विल बिकम द हेड पंच। ठीक है, द मोमेंट जुम्मन बिकेम द हेड पंच ही रियलाइज्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ जज एंड द डिग्निटी ऑफ हिज. Could he, seated in that high place, have his revenge now? He thought, and no, he must not allow his personal feelings to come in the way of speaking the truth and doing the justice. Okay? तो उसको रियलाइज़ हुआ कि वो जिस जगह पे बैठा है, हेड पंच बना है, तो वो वहाँ पे बैठ के रिवेंज ले सकता नहीं है। उसको क्या करना पड़ेगा, उसको जो भी सच है उसका साथ देना पड़ेगा, जो भी सही डिसीजन है वो लेना पड़ेगा, तो ही वो जिस जगह पे बैठा है वो उसका काम सही से कर पाएगा। तो उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता चला। फिर क्या होता है दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स. व्हाट यू विल डू इज़ यू विल रीड पार्ट 1 and part 2 fully. Part 3 we will discuss later on and then we will go through it. Also go through the meanings भी एक बार सारे देख लो आप लोग. ठीक है, so that's your homework and do it very properly. Do complete the reading part, go through the meanings as well. Next part of the story we will be discussing later on. That's all for today students. See you all very soon. Bye and take care.